Hello children, this is the chapter number 5, our national goals, and we are reading the part 2, democracy and citizen. Today we will read about the human rights. So let's start. Enforced by law and ensured by the administration, human rights are the rights which are essential for the development of personality of man and for independent discharge of his duties. Human rights, that is the natural rights acquired by man, the correct use which helps man in the process of his overall development. Spheres of human rights. The spheres of human rights is very vast. It contains a variety of citizens, political, social, economic and cultural rights. To understand these rights, they are divided into 4 categories. First, those rights which every human acquires from birth and are a part of life. Second, those rights which are basic for the existence and development of human beings. Third, those rights for the realization of which some social conditions are essential. Fourth, those rights which are based on the primary needs and demands of मैन. तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन राइट्स जो होते हैं प्रकृति ने इंसान को दिए होते हैं वह ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं. ह्यूमन राइट्स प्रत्येक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत आवश्यक हैं और वह अपनी जो उसकी स्वतंत्रता है उन्हीं पर डिपेंड करती है. ह्यूमन राइट्स वो कहलाएंगे जिसे प्रकृति ने इंसान को दिए हैं और वह उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. अब ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो कई चीज़ों पर बेस्ड होते हैं. सिटीजन्स, वैरायटी ऑफ सिटीजन है, पॉलिटिकल है, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स, इन सब को मिला करके बनते हैं. ह्यूमन राइट्स को इसलिए 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है. तो फर्स्ट कैटेगरी में आता है कि जो अधिकार मनुष्य को जन्मजात दिए गए हैं, उसे जन्म से ही प्रदान किए हैं प्रकृति ने और वो उसके जीवन का अभिन्न अंग हो. फिर वे अधिकार जो मानव जीवन और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मेन बेस होते हैं, मुख्य आधार होते हैं. फिर वे अधिकार जिनको पाने के लिए उसे उचित सामाजिक दशा और परिस्थितियों का होना अनिवार्य है. फिर 4th कैटेगरी में वो राइट्स को रखा गया है जो मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं और मांगों पर आधारित होते हैं. नाउ डिक्लेरेशन of universal human rights. The most important achievement of UNO in its endeavor of protect human rights was the declaration of universal human rights by the General Assembly on December 10, 1948. Therefore, every year, 10th December celebrated as International Human Rights Day throughout the world. The declaration states every person is free by birth and has equal rights and dignity to acquire these rights and freedom. No distinction is made on the basis of race, caste, sex, language, religion, politics, nation and social status, property and other level. तो यूएनओ ने ह्यूमन राइट्स के लिए असेंबली बनाई और उन्होंने 10 दिसंबर 1948 को पारित कर दिया कि ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा की जाएगी. इसलिए हर साल 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है सारे विश्व में. उसमें यह डिक्लेयर किया गया कि हर व्यक्ति जन्म से ही हर व्यक्ति समान होगा, स्वतंत्र होगा और उसे अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है, अपनी गरिमा को बनाए रखने का अधिकार है. इन अधिकारों स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो रेस के ऊपर हो, चाहे कास्ट के ऊपर हो, चाहे सेक्स, लैंग्वेज, किसी भी तरह के, ना कोई नस्ल भेद होगा, ना कोई कास्ट बेस भेदभाव किया जाएगा, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो. सभी को ह्यूमन राइट्स जो है वो प्रदान किए जाएंगे और उसे उसका पालन करने का अधिकार होगा. Human rights and its protection. These rights can be taken to different social levels of society through education. The following efforts can be made to spread awareness of human rights.
among the masses, to to take out rallies from humans chains, and to organize missions for awareness of human rights, to spread information through the medium of television, radio, and video films, to propagate and communicate through newspapers, posters, and slogans, to organize talks on human rights during meetings and seminars. ह्यूमन राइट्स के लिए ताकि लोग जागरूक हो सकें, उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं। और जैसे कि रैली निकलवाना, फिर ह्यूमन चेन बनाना, और इस तरह से ये वाले अभियान चला के मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। दूरदर्शन है, रेडियो, वीडियो फिल्में आदि दिखाई जा सकती हैं। देन न्यूज़पेपर्स हैं, पोस्टर्स हैं, स्लोगन्स हैं, मीन्स नारे हैं, इन सब का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। देन बहुत सारे सिटिंग्स ली जा सकती हैं, मीटिंग्स ली जा सकती हैं, सेमिनार्स किए जा सकते हैं, जिनके द्वारा लोगों को उनके मानव अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन। Human Rights Commission has been established in our country for the protection of human rights. The Madhya Pradesh Human Rights Commission was established on 6th Jan 1992. The Human Rights Protection Act 1993, effective from 28th September 1993, was passed by our Parliament, in accordance to which the Madhya Pradesh Human Rights Commission was formed, which is an independent and autonomous body whose aim is to protect the rights mentioned in the above act. In addition to this, the human rights protection endeavors to spread human rights to the common masses. The office of the MP Human Rights Commission is situated in Bhopal. The people whose human rights have been violated can protect their rights through the कमीशन। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया गया है। तो उनके संरक्षण के लिए हमारा जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी 6 जैन 1992 को एक आयोग का गठन किया गया, और जो हमारी पार्लियामेंट है उन्होंने इसे 1993 28 सितंबर से उसे पारित कर दिया और प्रभावशील कर दिया, जिसका उद्देश्य है कि मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाए, और इसके साथ ही साथ मानव अधिकारों के संरक्षण और उनको जागरूक, उनके जो अधिकार हैं उनको जनसाधारण तक पहुंचाने का कार्य भी यह आयोग करता है। जिन लोगों के मानव अधिकारों का हनन होता है तो इस आयोग से शिकायत करके अपने अधिकारों के लिए संरक्षण या सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वेज टू सेंड कंप्लेंट्स टू द कमीशन। अब कंप्लेंट्स किस तरह से भेजी जाती हैं? वो कंप्लेंट्स कैन बी सेंड टू द कमीशन डायरेक्टली बाय द aggrieved person or through someone else. The complaint can be written on an ordinary paper and sent directly to the office of the commission. Legal help or a lawyer is not required to send the complaint. There is no provision of format, no need of any stamp paper, और फ्री टू सेंड द कंप्लेन। तो कोई भी व्यक्ति है जिसे लगता है कि मेरे अधिकारों की मैं रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे अधिकारों का किसी ने हनन किया है, तो वह सीधे एक एप्लीकेशन या एक शिकायत जो है, कंप्लेन जो है, वो वहां पर दर्ज करवा सकता है। इसके लिए उसे किसी भी सीधा भेज सकता है, साधारण सिंपल कागज पर लिख करके सीधे अगर वो अपनी शिकायत मानव अधिकार आयोग को भेजते हैं तो उस पर भी कार्रवाई होती है। इसके लिए किसी लॉयर की आवश्यकता नहीं है, किसी स्टैम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है, और इसके लिए किसी भी प्रकार का जो है वो फीस नहीं ली जाती है।